Good morning, guys. Next topic of chapter retirement or death of a partner, that is accounting treatment of a goodwill. यानी जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी या रिटायर हो जाए तो जो गुडविल की वैल्यूएशन हमने की है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। आपको ये मैंने पहले बता दिया था कि हम इस गुडविल को बुक्स में क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों इसको पार्टनर्स में आपस में बांटकर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिकॉज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो it is specified that goodwill can be recorded in the books only when some consideration is in money or money's worth has been paid for it. यदि हमने गुडविल को खरीदने के लिए कुछ पैसा या कुछ कंसीडरेशन दिया है तो ही हम बुक्स में लिखेंगे, अदरवाइज हम इस गुडविल को पार्टनर्स में आपस में बांटकर और राइट ऑफ कर देंगे। Only purchased goodwill can be recorded in the books of the goodwill account, cannot be raised. तो इस कारण हम गुडविल को पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी तक हमने देखा था कि इन एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, वी डिस्ट्रीब्यूटेड that goodwill among old partners. In which ratio? In sacrificing ratio. Because old partners sacrifice their profits for the new partner. So the new partner who brought goodwill, it will be distributed among old partner in sacrificing ratio at the time of admission. But in retirement and death, the rule has been changed. यहाँ पर हम गुडविल को we will distributed among remaining partners. I am using here the word remaining partners क्योंकि मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर रिटायर या डेथ हो जाती है एक की, तो जो बचे हुए पार्टनर हैं that is called remaining partner. तो we will distribute goodwill in remaining partner in gaining ratio. क्यों? क्योंकि यहां पर जो गेनिंग रेशियो जो निकाला इसलिए जाएगा कि 3 में से यदि एक पार्टनर हट गया तो टोटल प्रॉफिट बाकी 2 पार्टनर ही लेंगे, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। So the amount of goodwill of retired or deceased partner will be distributed among the remaining partner in gaining ratio. It means कि जो बाकी बचे हुए पार्टनर हैं वो रिटायर्ड या डेथ हुए पार्टनर की गुडविल का अमाउंट गेनिंग रेशियो में रिटायर्ड पार्टनर को देंगे। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट और डेथ में रिमेनिंग पार्टनर गुडविल का जो शेयर है रिटायरिंग पार्टनर या डेथ पार्टनर का, उसे गेनिंग रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दिस? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर और रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू retired or deceased partners capital account in their gaining ratio. Now I will explain this from the following questions. See, PQR are equal partner in a firm, R retires and the goodwill of the firm value 3,60,000. No goodwill account appears as yet in the books of the firm. P and Q agree share future profit 3:2. Pass necessary journal entry. तो first we have to calculate gaining ratio. सबसे पहले रिटायरमेंट और डेथ में आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीनों पार्टनर पहले इक्वल पार्टनर थे, यानी 1:1 के वो पार्टनर थे। नाउ आर रिटायर हो गया,
So what will be the new ratio of P and Q? Gaining ratio formula is new ratio minus old ratio. तो P का कितना होगा? न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 3/5 of P. तो P gains 3/5 minus 1/3 is equal to 4/15, and Q gains 2/5 minus 1/3 equals to 1/15. So gaining ratio is 4:1. Now after calculating gaining ratio, the entry will be, as I told you, continuing partners debit, so P's capital debit, Q's capital debit to retired partner, that is R's capital, and the goodwill amount, the firm goodwill is 3,60,000. ये फर्म की गुडविल है. We will distribute this the amount of goodwill only R shares. R की इसमें कितनी होगी? तो 1/3 इसकी निकाल लें. 3,60,000 की 1/3 1,20,000 हो गया, और 20 लाख को 4/1 में यानी 96,000 हमने P को डेबिट कर दिया, और 24,000 से हमने Q को डेबिट कर दिया. That is the answer of this question. Now please, second illustration, Bharti, Kriti and Preeti are partners sharing profit 2:3:4. Preeti retires, and this purpose goodwill is valued at 1.5 year purchase of average super profit of last 3 years. So first we have to calculate gaining ratio and sacrificing ratio, and then we will calculate the amount of goodwill. Here there is, in this question, no new profit sharing ratio is given. So new profit sharing ratio will be 2:3 of Bharti and Kriti. When no new profit sharing ratio is given, then gaining ratio is the same as the new profit sharing ratio. So gaining ratio is also 2:3. Now calculation of goodwill. We have to calculate goodwill by super profit method. What is the formula of goodwill? Goodwill formula is super profit into number of year of purchase. How we calculate super profit? As I told you earlier, super profit equals to average profit minus normal profit. Here in question normal profit is given and 3 years of profit is given. So first we calculate average profit. Average profit, we added 50,000, 55,000 and 75,000, divide by 3. Average profit comes 60,000. What is super profit? Average profit minus normal profit. Average profit 60,000 and normal profit is given 45,000. Then the super profit will be 15,000. And what will be the goodwill? 15,000 multiplied by 1.5 is equal to 22,500. It is firm's goodwill. ये फर्म की गुडविल है. जब भी आप क्वेश्चन करें तो इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दें. प्लीज रिमेंबर, इसमें रिटायर्ड और डेथ वाले पार्टनर की गुडविल का शेयर ही हमें निकालना है. सो 22,500, और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था प्रीति का 4/9. गुडविल विल बी 10,000, and this amount will be distributed among continuing partner and retired partner in the ratio of 2:3. Entry will be Bharti's capital account DR 4,000, Kriti capital account 6,000, and 2 Preeti capital account 10,000. Now next topic. When
गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, यानी आप दो चीजें आपको है, एक तो गुडविल आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दी हुई है और दूसरी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है। तो यहां पर दो तरह से ट्रीटमेंट होंगे। फर्स्ट, जो गुडविल आपको बैलेंस शीट में दी गई है, फर्स्ट वी हैव टू राइट ऑफ दैट गुडविल, और उस गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए हमें एक एंट्री पास करनी होगी, दैट इज ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो गुडविल हमें दी हुई है वो ऑल पार्टनर में हम बांटेंगे और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको बांटकर गुडविल को क्रेडिट कर देंगे और इस तरह उसे राइट ऑफ कर देंगे। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फ्रॉम फॉलोइंग एग्जांपल। ABC profit sharing ratio 3:2:1. Goodwill is appears in the books at the value of 2,40,000, यानी ये असेट साइड में आपको 2,40,000 रुपए गुडविल दी हुई है। B retires and on the day of B retirement goodwill is value at 6 lakh, ये रिटायरमेंट के टाइम पर वैल्यू है। AC decided share future profit 3:2, pass necessary entry. So first we have to calculate gaining ratio, new ratio minus old ratio। न्यू रेशियो था इसका ए का 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो था 3/6, तो गेनिंग रेशियो आ गया 3/20 और सी का भी इसी तरह आ गया 7/30, तो गेनिंग रेशियो 3:7। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट ऑफ द गुडविल विच अपीयर्स इन दी बुक्स। 2,40,000 को हम खत्म करेंगे, तो मैंने एंट्री बताई आपको, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, and this amount will be divided among the partner in old profit sharing ratio, that is 3:2:1। 2,40,000 को हम 1,20,000, 80,000 और 40,000 में डिवाइड कर देंगे। नाउ सेकेंड एंट्री कि गुडविल का वैल्यूएशन रिटायरमेंट के टाइम पर 6 लाख किया गया है, इट इज फर्म गुडविल। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो, द शेयर ऑफ बी। तो 6 लाख का गुडविल है तो बी का शेयर था पुराना 2/6, इसका मतलब 2 लाख रुपए, एंड दिस अमाउंट 2 लाख रुपए विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग गेनिंग पार्टनर, अमंग रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। A's capital account DR 60,000, C's capital 1,40,000 and total 2 lakh. So this is the entry which we will pass. Now I will explain another example. As T and U were partner in the firm, profit sharing ratio 1:2:2 on 15 to 18 has died, and the new profit sharing ratio of T and U is 3:2। on the death of goodwill was valued of the firm 6 lakh। तो हमको न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो दोनों दिया हुआ है, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू टी का 3/5 माइनस ओल्ड था इसका 2/5 इज इक्वल टू 1/5, एंड गेनिंग रेशियो ऑफ यू 2/5 माइनस 2/5 इक्वल्स टू 0। तो हियर यानी हमें इसमें सिर्फ टी गेन कर रहा है, तो द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी बियर्ड बाय द टी। 6 लाख, 6 लाख में से यू का 6 लाख में से एस का शेयर था 1/5 इज इक्वल टू 1,20,000, तो टीच कैपिटल अकाउंट डी आर 1,20,000 एंड एस कैपिटल अकाउंट डी आर टू 1,25,000। From this illustration I want to tell you that if only one partner is gaining, then all the goodwill amount will be beared by the gaining partners. Now I will tell you about when new profit sharing ratio is not given, then
how we calculate the gaining ratio. In this example, A, B, C are partner, profit sharing loss 4:3:1 respectively. B रिटायर हो रहा है, सेलिंग इज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी 81,000, यानी इसके गुडविल का अमाउंट है 81,000 जो इसको मिलेगा। ए से इसने ए ने 36,000 पे किया इसमें, और बी ने इसे 45,000 में पे किया। तो इट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे अब, क्योंकि हमको इसने नया रेशियो नहीं दिया है और हमको केवल पुराना रेशियो देकर और ये बता दिया है कि किस तरह हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ए बी सी पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग 4:3:2 मैंने आपको बता दिया। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसे किस तरह निकालेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव सेल ऑफ बी शेयर टू ए एंड सी एंड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी। जब बी रिटायर हुआ तो उस वक्त फर्म का प्रॉफिट 1,05,000 रुपए था। तो सबसे पहले तो जब हमको मैंने आपको बताया था कि जो रिटायर पार्टनर होता है उसकी गुडविल को गेनिंग रेशियो में बांटते। इसमें क्वेश्चन में हमें गेनिंग रेशियो की जगह अमाउंट दे दिया। तो फर्स्ट एंट्री एज कैपिटल दिया 36,000 जो इसने दिया, बी कैपिटल 45,000 एंड सी टू बीस कैपिटल 81,000। ये तो पहली एंट्री हो गई। सेकेंड, दूसरी एंट्री है कि प्रॉफिट बी के रिटायरमेंट के बाद 1,05,000 रुपए होगा। अब यहाँ है कि बी के बाद रिटायर हो गया तो जो 1,05,000 हुआ वो ए और सी में डिवाइड करना है, बट इन विच रेशियो, क्योंकि नया रेशियो हमें नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें गेनिंग रेशियो दे दिया गया है। गेनिंग रेशियो हम निकाल लेंगे 36,000 और 45,000, तो 36,000 इज टू 45,000, तो दैट इज 4:5। ये हो गया हमारा गेनिंग रेशियो, 4:5 गेनिंग रेशियो हो गया। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लीज सी द फॉलोइंग कैलकुलेशन। ए गेट 4/9, पुराना शेयर था 4/9 का, एंड ऑफ बी शेयर ऑफ 3/8, 4/9 इसका गेनिंग रेशियो है, 3/8 का, तो देयर इज ए 12/72। तो ए का ओल्ड शेयर था 4/8, इसमें 12/72 हमने जोड़ दिया, देन इट कम्स टू 2/3। इसी तरह हमने सी का शेयर था 5/9 जो गेनिंग रेशियो था, और बी का शेयर था 3/8, तो 3/8 का 5/9 निकाला हमने 15/72। तो सी के ओल्ड शेयर 1/8 में 15/72 हमने जोड़ लिया, then it comes 1/3. The new ratio is 2/3 is to 1/3, that is 2/1. This is our new profit sharing ratio, and in 2:1 we distribute the profit to A and C. Entry will be P&L appropriation account DR to A's capital and to B's capital in the ratio of 2:1. Thank you very much. हैव ए नाइस डे। मैं आपको इसके क्वेश्चन अलग से दे दूंगा।